यस, रुक जाइए, मैं प्ले करता हूँ, ठीक है। सम प्रॉब्लम विथ योर साउंड, ओके, सो वेट, आई विल स्टार्ट। मैं अभी नेशनल एंथम प्ले करने वाला हूँ। सब नेटवर्क इशू था, उसके कारण कुछ साउंड आ रही थी, सॉरी फॉर इट ऑल ऑफ यू। अभी हम तुरंत चालू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आप लोग जुड़े हो हरियाणा से। हरियाणा भारत का बहुत ही महान स्टेट है, जहाँ से कई सारे लोग भारतीय सेना के लिए शहीद हो चुके हैं और कई सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए भारतीय सेना के लिए। तो प्राउड मोमेंट है कि हरियाणा के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत खुशी की बात है। तो सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ बच्चों, मैं अभी नेशनल एंथम प्ले करने वाला हूँ, ठीक है। कि सिर्फ 20 डॉट से कैसे मरेंगे हमारे घर के सारे कॉकरोच? मम्मी जी, ये कॉकरोचों को मारने का है पेस्ट कंट्रोल जैसा एक्सपर्ट सॉल्यूशन। हिट एंटी रोच जेल। इसके मिनिमम 20 डॉट्स जब लगेंगे, कॉकरोच आएंगे, खाएंगे, मर जाएंगे और बाकियों को भी जड़ से मार देंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात हिमाचल यमुना गंगा चल गंगा। तव शुभ नामे तव शुभ आशीष मांगे गाए जन गण मंगल जय है भारत भानु की माता। माइक बंद कर लो। और मैं डेनू लास्मी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. Good morning, everyone gathered here. This is Dina Lashmi, brand ambassador of Igniting Dreams of Young Minds Foundation. It is my pleasure to welcome you all and thank you to each and every one of you for being here with us today. We are very pleased to be able to welcome those of you who have been with us today for the workshop. We are really happy to host this workshop on the beautiful place Haryana with you all. Once again, I warmly welcome you everyone. On behalf of Igniting Dreams of Young Minds Foundation, I would like to express my sincere thanks to all of you who generously helped us to make this event come together to become a success. We could not have done it without you. I warmly welcome our Honorable Chief Guest, Mr. Amit Panigari, Facilitator, NASA Human Rover Challenge Team, NAPSET, and Mr. Anurag Behra, Facilitator, NASA Human Rover Challenge Team, NAPSET. I felt grateful to welcome Tagore Global School. Also, I warmly welcome NAPSET team members, Laila ma'am and Rashankar Kumar sir, who are great guidance for our team. I welcome our dear students who are set to make this event a remarkable one. And our Igniting Dreams of Young Minds main aim is to promote space and satellite education for every young mind, that is for the entire student community from any schools and colleges all around the world. Well, I hope workshop based on satellite technology will help you to improve your knowledge and skill. So I request everyone to utilize the golden opportunity of IDYM. Take a shot and join with us on this wonderful journey. With all enthusiasm, I welcome you all once again to the Momentis event. Today will be full of fun and learning. Have a great day. Thank you, Daniel. Thank you so much. And now it's time to welcome a great team of NASA, a team who has created the history by entering first time Okay, sir. in NASA Mars Rover Challenge from India. तो आज आप लोगों के बीच में भारत की वो महान टीम से आप लोगों को मुलाकात करवाने जा रहा हूं, जिन्होंने भारत के इतिहास में एक इतिहास रच दिया है।
इतिहास में एक इतिहास रच दिया है। ओके आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं अनुराग मलिक सर, यस जो कि इस पूरे इनके साथ कई सारे लोग और हैं, अनिल सर जो कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, और एक और सर है, मैं उनका नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो कई सारे लोगों ने मिलके बहुत बड़ा इतिहास खड़ा किया है, और ये नासा की पहली टीम है, भारत की पहली टीम है जो नासा मार्स रोवर चैलेंज के लिए सिलेक्ट हुई है। यस, नाउ हैंड ओवर टू अनुराग जी एंड ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ नासा। Yeah, so very good morning, students. और आशा है कि गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग यस बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट ये रहेगा बेटा कि आप लोग कोई भी चीज जो है ना मैसेज बॉक्स में डालिएगा, तब वर्कशॉप बहुत स्मूथ में जाएगा और बहुत अच्छे से होगा। ठीक है बेटा, बस इतना आप लोग ध्यान रखना। ओके, थैंक यू बेटा। ओके सर अनुराग जी प्लीज। एंड प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। यस सर Okay, Anurag ji, you proceed. I will, whoever will speak, I'll mute them. Don't worry. You just start. Yes, sir. Yeah. So good morning, students. So it's our honor being the part of a team NAPSAT HRC team. So the NASA Human Rover Challenge team of Team NAPSAT to be part of the workshop that has been conducted for your school. Thank you so much for giving us this opportunity, IDYM Foundation, and this is a great honor. So to start with, the first thing that we discuss with our students as well. For example, today one of you are very young kids. You go to a barber shop and the barber is cutting your hairs. At that time, you start discussing something like, do you know Mars में life है? पता है तुमको कि ये satellite ऊपर ऐसे जा रही है? Even the barber who might not be that educated, who might not be that inclined towards intellectual education, even such people will stop cutting the hair to listen about space technology, because the whole thing of space is so vast, which is like partially visible to us, but very deep. The deeper you go, the deeper it gets. So every time I explain this story to the students around, like for example, like there was a kid in the village and he was sleeping on the lap of his grandma, and the bed was at a place in the home from where through the window the sky was visible. So the kid started to make patterns with the stars, and in school the kid learnt about Ursa Major, Ursa Minor, so जिसे आप सप्तऋषि कहते हैं, तो वो सब के बारे में वो पढ़ के आया स्कूल से। एंड देन वो रात में हमेशा अपनी दादी के गोदी पे बैठ के वही सभी पैटर्न बनाता था, हर स्टार्स के पैटर्न्स बनाता था। लेकिन एट द सेम टाइम वो जब अपने बागीचे में जाएगा या फिर अपने दूसरे पढ़ाई मैथ्स या फिजिक्स का कुछ करेगा, उस टाइम पे आपको उतनी इंटरेस्ट नहीं आती जितनी आपको स्टार्स की पैटर्न्स बनाने में आती है। उस एज पे उसको इतना इंटरेस्ट आने लगा कि लास्ट में उसने वॉल में जो आपके ब्रिक्स हैं वहां पे जैसे दाने 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 होते हैं, तो उससे भी उसने पैटर्न्स बनाना चालू किया, बस इमेजिन करना चालू किया। ही गॉट सो एनग्रॉस्ड इनटू इट बिकॉज that is the vastness and the depth of the space. But the difficult part for which everyone around us is interested in space technology, but no one ever tries to come into it. Uska reason ye hai ki it has been taught to us that it is a very hi-fi science and you need to learn very advanced maths, very advanced chemistry, advanced physics, then only you can enter into it. But that's not how you do it. That's the wrong way how it has been taught to us. The real way how it has been is you have to attempt something, and in the process you start learning things about it. अभी मान लो जैसे आप लोग मैथ्स में you are trying to calculate the length of a hypotenuse, or let's say you are trying to calculate a value in maths. So in order to calculate that value, you all start to learn things like what is a plus b whole cube, or what is a plus b whole square, or maybe what is a Pythagoras theorem.
But if you expect from yourself that I learn everything and then later on I'll go and attempt it, so you, in any field, you can't learn everything, because the educational field is expanding day by day. Not just that, it is space technology what we are talking about. So if you compare to any maths, physics, or anything else, whatever we study in school, everything has started since long. But this space technology thing, where human beings really started to get serious about space, it has started way after what is called as World War II, the post World War II time. So the human beings themselves aren't that matured yet related to space technology. And whenever it comes about space technology, the first thing we all discuss about is people will talk to you about black holes. They will talk to you about life in Mars, life in moon, water in moon. But that's not the only job of space technology. हम लोग आज सैटेलाइट्स देख रहे हैं ना हर जगह, तो सैटेलाइट्स का काम सिर्फ आपका वेदर मॉनिटरिंग करना नहीं होता है, या फिर सिर्फ आपका लैंड मैपिंग करना या ओनली सिक्योरिटी करना नहीं होता है. आजकल सैटेलाइट हैज बीन अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, like there is a smartphone in your life. In the same way, slowly satellites are coming into your life. So that's the scope of the satellites, because it is the satellite because of which today you are able to talk over phone. They are the satellites because of which we are having such a nice workshop even in the time of a pandemic. We are sitting at such a great distance. Like, just say I am in Bangalore, our team guys are in Bhubaneswar, Odisha. You guys are in Haryana, but we are still able to have it because there is a satellite above. And then you have a Google map, you know how it is. So तुमको तुम्हारे दोस्त के घर जाना है, then आप उसी में ही आपका लोकेशन डाल सकते हैं, and it shows you the path as well. You have platforms like Bhuvan, which is invented by ISRO. वहां पे आप जाके अपने गांव का, अपने शहर का 50 years old डेटा देख सकते हैं. 50 years old वहां पे फॉरेस्ट कवर कैसा था, वहां पे कितनी जनसंख्या होती थी, जगह कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और आज इस स्थिति पे आया है कि आपकी सिटी ऐसी दिख रही है. सो दिस इज हाउ द होल थिंग ऑफ सैटेलाइट्स हैव कम इनटू बीइंग इनटू आवर पर्सनल लाइव्स. माने आपकी पूरी माने स्लोली ऐसा टाइम आने वाला है कि जब खेती बाड़ी भी होगी तो सैटेलाइट से इनपुट्स लिया जाएगा. सो आज के डेट में स्पेस टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग लाइफ आउट ऑफ अर्थ, बट इट इज ऑल्सो अबाउट मेकिंग आवर लाइफ इन द अर्थ इजियर. सो उसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है बेस्ड ऑन अ नैनोसैट, जो सैटेलाइट 1 kg से 10 kg की साइज की होती है. सो मैं अभी मेरी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों से उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा एक ब्रीफ टाइम के लिए, तो ताकि आप लोग को एक आइडिया मिले कि नैनोसैट होता क्या है और व्हाट इज बेसिकली ए सैटेलाइट एंड उसमें नैनोसैट होता क्या है. देखो, सैटेलाइट कई प्रकार की होती है, जैसा अनुराग जी ने आपको बताया. जैसे सैटेलाइट होती है माइक्रो सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट, मोनो सैटेलाइट, जो भी आप देखने जा रहे हो वो अनुराग जी आपको दिखाने जा रहे हैं. तो सैटेलाइट के डिफरेंट फंक्शंस है, तो आप देखो अच्छे से और ध्यान से सुनो. कोई भी क्वेश्चन हो वो मैसेज बॉक्स में डालो, हम उसको बराबर आंसर करेंगे लास्ट में, चिंता मत करो, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं. बच्चों, ये जो भारत की जो इसरो है ना, वो कई सारे सैटेलाइट लॉन्च किए है, और आप लोग बीच में बोलोगे मत क्योंकि अभी सर बोल रहे हैं. ठीक है अनुराग जी, कंटिन्यू. जी सर. अभी रिसेंटली आपने सुना होगा PSLV C50 भारत ने लॉन्च किया था. भारत ने 50वां रॉकेट PSLV का लॉन्च किया, 50th रॉकेट. जस्ट फील प्राउड टू बी इंडियन. 50th रॉकेट ऑफ PSLV इंडिया लॉन्च रिसेंटली. यस अनुराग जी, प्लीज कंटिन्यू. जी. सो सब लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस अनुराग जी, देख पा रहे हैं. यस. ओके. Yes, sir. जी. ओके. So hi team. So Yes, sir. so basically what is a satellite? So satellite is nothing but an object that is that is moving in the space orbit in circles.
लाइक जैसे अभी अर्थ के चारों ओर एक मून रिवॉल्व कर रहा है, सो दैट इज अ सैटेलाइट, बट दैट इज अ नेचुरल सैटेलाइट। सिमिलरली हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स अभी जीपीएस के लिए हैं। अभी इसरो ने, जैसे सर ने बताया, इसरो ने अभी कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च किया है, तो उसे कहते हैं हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस that is orbiting around a bigger object. So bigger objects like a planet, you can say. तो जैसे अर्थ के लिए मून एक सैटेलाइट है, उसी तरह आर्यभट्ट जो सैटेलाइट था, या भास्कर 1 भास्कर 2 सैटेलाइट्स जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए थे पहले, तो वो सब ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं, सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। What are the types of satellites? Natural and artificial. Then what are the types of artificial satellites? So जैसे अभी सर बोल रहे थे, so there are many kinds of artificial satellites. So communication satellites, remote sensing satellites, navigation satellites, geocentric orbit type satellites. So ये, and so the communication satellites are basically the satellites which are used for only communication. जैसे कि अभी आपने टीवी स्टेशन मान लीजिए, so like आप टीवी पे आज कुछ प्रोग्राम देख रहे हैं, so it goes from a ground station to a satellite, then it gets अभी यूएस में कुछ इवेंट हो रहा है, and that event has to be transmitted to somewhere in a place in India. So यूएस के ग्राउंड स्टेशन से वो चीज सैटेलाइट में जाती है, and from the satellite it gets transported to one more place. It is received at one more place in India, and वहां से आपके टीवी पे वो सिग्नल आती है. So that's how communication satellites do. Remote sensing satellites, आप चीजों को स्पॉट करने के लिए, डिफेंस रिलेटेड, आप जब रिमोट सेंसिंग करते हैं कहाँ पे कौन सी ऑब्जेक्ट है, या फिर आप मान लीजिए देयर इज अ लैंड, और वो लैंड के चारों ओर कैसी कैसी चीजें हैं, देयर इज अ डैम, वो डैम के चारों ओर क्या क्या लैंडस्केप है, व्हाट इज द काइंड ऑफ danger, or what are the benefits of the dam, so we can use it for other commercial purposes. Navigation satellite, so हमने अभी जैसे डिस्कस किया जीपीएस, आप गूगल मैप में you can move from so then geocentric orbit type satellites, so ये दूसरे हाइट्स पे ये सैटेलाइट्स होती हैं हमारे अर्थ से, और दे आर जनरली पोजिशनड ऑन टॉप ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. सो अभी अर्थ जैसे रोटेट कर रही है, वो लोग भी उसी रोटेशन में अर्थ के साथ पैरेलल सेम स्पीड में रोटेट करते हैं. सो इफ अ जियोसेंट्रिक सैटेलाइट इज अबव इंडिया, सो अगर प्लैनेट रोटेट हो रहा है अर्थ ऐसा, तो वो भी सेम ही स्पीड में रोटेट हो रहा है. सो बेसिकली it stands on India itself. So that satellite is solely dedicated for the purpose of India. उसे कहते हैं हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स. और उसके बाद है ड्रोन सैटेलाइट. सो ड्रोन सैटेलाइट्स आपने सुना होगा रिसेंटली न्यूज में कि इन्हें यूज करके अटैक्स किए गए थे. सो बेसिकली दे आर द सैटेलाइट्स हु मूव अबव द अर्थ, बट दे कैन बी यूज्ड फॉर लाइक, वो सैटेलाइट है बहुत ऊपर है, तो आपको पता भी नहीं है, माने ओपोनेंट को पता नहीं है कि देयर इज समथिंग ऑब्जर्विंग देम, बट आप वहां से कुछ वेपनरी भी डिप्लॉय कर सकते हो, या फिर आप उसके, अभी फिलहाल तो ज्यादा वेपन सिस्टम्स के लिए ही यूज हो रहा है कि लाइक यूएस अटैक्स करते हैं अपने ओपोनेंट्स पे थ्रू दैट. और ग्राउंड सैटेलाइट्स, पोलर सैटेलाइट्स, नानोसैट, क्यूबसैट, सब कुछ हम पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे. Our area of focus is nanosat. So polar satellite is something that moves around the poles. So मैंने नॉर्थ पोल टू साउथ पोल डायरेक्शन में जो सैटेलाइट घूमेगी. So basically मैं सब कुछ डिटेल में पूरा नहीं समझा रहा हूँ, अपना फोकस आज नानोसैट है. So let's first go into the system of satellites. So what is basically a satellite? So what is a nanosat? So जैसे हमारे फोन छोटे होते होते गए, it became smaller and smaller, and हम उनको आज पॉकेट में रख सकते हैं. एक जमाना था कि ओनली लैंडलाइन हुआ करती थी. सो सेम वे पहले सैटेलाइट्स भी बहुत बड़ी हुआ करती थी. टुडे अ नैनोसैट कैन बी ऑफ weight 1 kgs to 10 kgs, and the best part is there are even smaller satellites which can be in weight less than 1 kg also, because of the advancement of electronics. Now
व्हाट आर द डिफरेंट, लाइक वी नो कि सैटेलाइट एक ऐसी चीज है जो कि अर्थ के चारों ओर घूमती है। सैटेलाइट के अंदर क्या है जिसके लिए वो हमारी एम को दिमाग में रख के वो काम कर पाती है। सो लेट्स से हमको एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जीपीएस के पर्पस के लिए, लेट्स से। सो वो आपका वो स्ट्रीट मैपिंग वगैरह करने के लिए उसके अंदर क्या है जो कि वो उतने हाइट से वो सब कर पा रही है। सो डेफिनेटली वहाँ पे कैमरा होगा, वहाँ पे आपके वहाँ पे कुछ ऐसे लॉजिक इम्प्लीमेंटेड होंगे जिसकी वजह से कि आपको पता चल रहा है कि जैसे अभी आप और हम सोच पा रहे हैं कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाने के लिए व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो वैसा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी होना चाहिए आपके सैटेलाइट के पास, और वो डेटा वो आपको भेजनी चाहिए, या फिर वो आपके फोन में जो सॉफ्टवेयर है उसके पास वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, पर सैटेलाइट के पास से उसको वो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि कितने कितने रास्ते अवेलेबल हैं। अब मान लीजिए मेरे को कन्याकुमारी से कश्मीर जानी है, तो मेरे पास जाने को बहुत सारे रास्ते हैं, तो ये सारे रास्ते मेरे को सैटेलाइट अगर मेरे फोन के सॉफ्टवेयर पे नहीं दिखाएगा तो मेरा सॉफ्टवेयर डिसाइड नहीं कर पाएगा कि कौन सा रास्ता सबसे छोटा रास्ता है। सो देर आर मेनी subsystems. The satellite on its own is a whole system, and there are small subsystems inside. So subsystems के दो भाग होते हैं, one is a space segment, one is the earth segment. Then this is the basic thing, basic block diagram जहाँ से आप समझ सकते हैं कि what is a space means how the subsystems are actually made. So the space segment subsystem और अर्थ सेगमेंट सबसिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन लिंक होता है, एंड इफ एनी वन ऑफ देम फेल्स देन सैटेलाइट का पर्पस फेल हो जाएगा। सो बोथ ऑफ देम हैव टू रन इन सिंक विथ ईच अदर। नाउ व्हाट इज अ स्पेस सेगमेंट सबसिस्टम? सो स्पेस सेगमेंट सबसिस्टम वो है जो कि सैटेलाइट के अंदर होता है, तो सैटेलाइट के अंदर स्पेस में होता है। सो उसके ये 4 टाइप्स हैं। सो जब सैटेलाइट स्पेस में जाती है, आप चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रहे रिलेटिव टू योर ग्राउंड, रिलेटिव टू योर पोजीशन ऑन अर्थ, बट ड्यू टू डिफरेंट फेनोमेनन्स, क्योंकि वो स्पेस है और वहां पे आपकी ग्रेविटी हमेशा सेम नहीं रहेगी, कभी वेरी करेगी बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। सो वो कभी कभी गलत डायरेक्शन में भाग जाएगी, कभी कभी आपको खुद के एप्लीकेशन के चेंज होने की वजह से, मान लीजिए पहले मैं एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ऑब्जर्वेशन ज्यादा कर रहा था, नाउ आई वांट टू चेंज द पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे उसकी पोजीशंस को चेंज करनी पड़ेगी। सो फॉर दैट ऑल्टीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल सबसिस्टम्स, तो मैं वहां पे यूजिंग दिस सबसिस्टम एक सैटेलाइट की पोजीशंस को आप चेंज कर सकते हो, उसकी रोटेशन को चेंज कर सकते हो, वो कहाँ पे प्लेस्ड है अर्थ के ऊपर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कभी वो गलत दिशा में चली गई तो हम उसको दिशा दिखा के फिर से सही जगह ला सकते हैं। द नेक्स्ट सबसिस्टम इज टेलीमेट्री, ट्रैकिंग, कमांडिंग, मॉनिटरिंग सबसिस्टम। सो आपको जब भी कोई डेटा भेजनी होती है टू द अर्थ तो आपको टेलीमेट्री यूज करनी पड़ती है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टेलीमैटिक्स। सो व्हेन यू सेंड समथिंग टू द ग्राउंड, so you generally call it to be telematics, using the radio frequency waves, और उसमें आप telematics में you have to first process the data on the satellite को आपके जो ऑब्जर्व करने थे, मान लीजिए उसने कोई फोटो क्लिक किया नीचे, अब वो फोटो को मेरे को इंडिया में लाके दिखाना है, जो फोटो की मैंने नाइजीरिया के किसी फॉरेस्ट का क्लिक किया था, तो वो थ्रू टेलीमेट्री वो मेरे इंडिया के स्टेशन पे आएगी। और ट्रैकिंग, कमांडिंग, सो यहाँ पे आप ट्रैकिंग सिस्टम से आप सैटेलाइट की करंट पोजीशन को ट्रैक करोगे कि करंटली सैटेलाइट यहाँ है। और मॉनिटरिंग का मतलब है अभी सैटेलाइट की, वो सैटेलाइट इटसेल्फ इज ए डिवाइस। सो मान लीजिए कल को सैटेलाइट के अंदर में कोई प्रॉब्लम हुआ, मे बी आप एक कैमरा को एक जगह फोकस किए हैं, अब आपको कैमरा का और कैमरा की फोकस का जो एंगल है वो ड्यू टू सम, अभी स्पेस में बहुत कुछ होता है, कोई स्पेस में भी उड़ता हुआ फ्लोटिंग गार्बेज होता है,
स्पेस में एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स टाइप के बहुत सारे चीज होते हैं. देयर आर सर्टेन थिंग्स कॉल्ड एज स्पेस डस्ट. तो जब वो सब चीजों की वजह से कभी मान लीजिए आपकी कोई भी आपकी एंटीना हुई या फिर आपकी कैमरा हुई, उसकी एंगल चेंज हो गई, सो ये सब की हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं. किसी चीज की हेल्थ खराब हो गई, आपके किसी सर्किट जो सैटेलाइट के अंदर में जो इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गई, किसी की हेल्थ खराब हो गई, हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं. और कमांडिंग सिस्टम से हम सैटेलाइट को आदेश दे सकते हैं कि आपको ये काम करना है. सो अर्लियर यू आर लुकिंग एट हरियाणा ओनली, नाउ यू हैव टू लुक एट पंजाब ऑल्सो. आप ये इंस्ट्रक्शन देंगे सैटेलाइट को कि ऐसा करिए. देन आते हैं पावर सिस्टम्स एंड एंटीना सब सिस्टम्स. सो एंटीना सब सिस्टम्स वो हैं जो कि बाहर से आपके एंटीना से आप डेटा कलेक्ट करेंगे या फिर डेटा भेजेंगे, जो भी करते हैं. आपके फोन में भी एक एंटीना होता है. आप स्मार्टफोन में एंटीना आपको दिखता नहीं है, बट जनरली आपकी जो स्मार्टफोन में एंटीना होती है वो आपके फोन की ये एजेस में होती है या फिर इस अंदर में होती है. वो इस मटेरियल से बनी हुई होती है कि वो अगर भी एक केसिंग के अंदर है फिर भी वो सिग्नल पकड़ सकती है. तो एंटीना मतलब आपके घर पे जैसे एक डिश एंटीना होगी, सो उसी टाइप की एक एंटीना, लेकिन वो बहुत पावरफुल एंटीना होगी, जो कि एक एंटीना या बहुत सारे एंटीना हो सकते हैं हमारे सैटेलाइट के ऊपर. तो ये है एंटीना सब सिस्टम्स. और पावर, तो सिंस वहां पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को चलने के लिए, जैसे आपके घर पे बल्ब जलने के लिए, आपके फोन को चलने के लिए पावर चाहिए, तो आपके सैटेलाइट को भी चलने के लिए पावर चाहिए. तो उसके लिए वो है पावर सब सिस्टम्स. उस सब सिस्टम की वजह से आपके सैटेलाइट को पावर मिलता है. फिर नेक्स्ट है ट्रांसपोंडर. तो ट्रांसपोंडर मतलब जहां से आप ट्रांसमिट और रिसीव दोनों कर सकते हैं. सो ट्रांसीवर और ट्रांस रेस्पोंडर. सो यू इसीलिए ट्रांसपोंडर का मतलब है ट्रांस, सो ट्रांसमीटर प्लस रेस्पोंडर. सो पहले वो डेटा ट्रांसमिट भी कर सकता है और रेस्पॉन्स को रिसीव भी कर सकता है. सो अ बाई डायरेक्शनल सिस्टम. आप बोलेंगे कि एंटीना सब सिस्टम जो था, ट्रांसपोंडर किस लिए आया, बट पॉइंट ये होता है कि एंटीना से बस आपने डेटा को रिसीव किया, बट ट्रांसपोंडर सिस्टम की वजह से ही आप वो डेटा को इंटरप्रेट करते हैं. और कभी कभी सैटेलाइट का यूज सिर्फ डेटा को एक हिस्से से दूसरे हिस्से भेजना ही होता है. कभी हमको बीच में कुछ प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती. सो इसीलिए होता है ट्रांसपोंडर सब सिस्टम. अब ये होता है अर्थ सेगमेंट सब सिस्टम. सो अर्थ सेगमेंट सब सिस्टम मतलब वो सब सिस्टम जो नीचे में हो. जैसे अभी मान लीजिए हमारी इसरो की सैटेलाइट लॉन्च हो गई है. इसरो की सैटेलाइट से जो डेटा हमारे पास ग्राउंड पे आएगी, ग्राउंड पे जो सिस्टम में हम उसको रिसीव करेंगे, उसे आप अर्थ स्टेशन भी कहते हैं. सो यस अनुराग जी, आपका माइक बंद हो गया, थोड़ा सा ऑन कर लीजिए. अनुराग जी, हेलो अनुराग जी, कैन यू हियर मी? हाँ, यस सर, हेलो हेलो. Yes, some problem with this thing. Your mic has been muted. ओके सर, ठीक है सर. सो लाइक फ्रॉम वेयर शुड आई Please, sir. कंटिन्यू? Yeah, you please go ahead. You were in the, then satellite is launched and it has gone to space. You are continuing there. Page number 9. You are in page number 9. Sir, muted again. Actually, some person is muting me. Yeah, so can I continue? Please continue. I have removed him from the meeting. Please continue. So the Earth segment subsystems are the one जो कि मतलब सैटेलाइट इज ऑलरेडी इन स्पेस, लेकिन अभी हमको ग्राउंड पे हम उसका डेटा रिसीव करते हैं. तो अभी जैसे नासा की, जैसे अभी नासा की हो या इसरो की हो, एक सैटेलाइट आज स्पेस पे है, एंड दैट सैटेलाइट से जो दैट डेटा दैट सैटेलाइट हैज टू सेंड अस, उसको हमको अर्थ पे भी रिसीव करना होता है.
सो जो सिस्टम से हम उसको रिसीव करते हैं उसे हम कहते हैं अर्थ सेगमेंट सब सिस्टम। ये है एक बेसिक डायग्राम उसका, लेकिन शायद आप लोग के एज ग्रुप में हम ये पूरा चीज़ तो नहीं समझा पाएंगे क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा हेवी हो जाएगा, बट बेसिक्स ऐसा बोल सकते हैं कि ये हम सैटेलाइट से डेटा आया, ये सब सिस्टम्स के द्वारा वो यूज होके हमारे एक फाइनली एक सर्वर में या फिर एक स्टेशन में रिसीव हुआ। So conclusion, satellites have grown in terms of purpose because of advancement in the field of technology. आज आप कुछ सैटेलाइट्स एयर में डिप्लॉय करने के बाद, स्पेस में डिप्लॉय करने के बाद पूरी अर्थ को देख सकते हैं। तो जब हम पुराने टाइम में हमारे महाभारत में हमने स्टोरी सुनी थी कि देयर वाज अ वे हाउ different people like Maharshi Vishwamitra could foresee what is happening in the other part of the planet. तो ऐसी स्टोरियां होती थी कि महर्षि विश्वामित्र को दूसरे प्लैनेट में क्या हो रहा है या फिर अपने ही प्लैनेट में दूसरे एंड में क्या हो रहा है उनको उनके दिव्य शक्ति से पता चलती है। तो ये सब चीज आज के जमाने में हम इंसान कर पा रहे हैं यूजिंग दिस सैटेलाइट्स। हाँ, अभी ये टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस नहीं हुई है लेकिन हो रही है। तो अगर आप लोगों जैसे स्टूडेंट्स आज ये स्पेस टेक्नोलॉजी को परस्यू करेंगे, देन कल जब ये टेक्नोलॉजी बड़ी होने वाली होगी, देन आप लोग मार्केट में वो पहले लोग होंगे जिनको इस चीज का ज्ञान ज्यादा होगा, जिनको इस चीज का एक्सपोजर सबसे ज्यादा होगा। तो जिनको पहले ज्ञान होगा, आपका मार्केट में उतना डिमांड रहेगा और आपको इतना मजा भी आएगा, क्योंकि आप कितने हजार लोग, मतलब आप आज एक स्मार्टफोन बना रहे हैं, ठीक है, स्मार्टफोन से आप गेम खेल रहे हैं, स्मार्टफोन से आप मूवीज देख रहे हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, पर वो स्मार्टफोन से कितने लोगों की जिंदगी आसान हुई है। उसी प्रकार कल आप जब एक सैटेलाइट बनाएंगे और स्पेस में आप लॉन्च करेंगे, आप जब करोड़ों लाइफ्स इजी करेंगे, तब बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो यही मेरा संदेश है आप लोगों को कि प्लीज डोंट थिंक दैट स्पेस टेक्नोलॉजी इज वेरी हाई फाई और खाली टैलेंटेड स्टूडेंट्स, टॉपर स्टूडेंट्स शुड गो। एवरीवन कैन गो। All you need is an intent and how you approach the problem. How to approach the problem is not by first learning everything about the problem and come in. Problems always come in life with a surprise. Problems never come by telling you, by knocking the door कि मैं problem हूँ, अंदर आ रहा हूँ. They never do that. So what you have to do is कि problems face करो, अपने आप को challenge करो कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है। अगर मैं छोटा सा आज एक लाइट बल्ब जला रहा हूँ, लेट से आपके स्कूल में कभी कभी आपसे करवाई जाती होगी कि एक बैटरी यूज करके एक छोटी सी लाइट बल्ब जला रहे हो, देन व्हाई नॉट मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊं कि मैं वो सिस्टम के आगे ऐसे हाथ दिखाऊं, बल्ब जलनी चाहिए, हाथ निकालूं, लाइट बंद हो जानी चाहिए। व्हाई नॉट दैट? सो अगर वो अगर सक्सेस हुआ तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि मैं अगर हाथ दिखाऊं, लाइट भी जले और मेरे फोन पे SMS आए, एंड देन आपको उस प्रोसेस में बहुत कुछ धीरे धीरे करके बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो चैलेंज योरसेल्फ एंड नेवर थिंक एनीथिंग इज वेरी बिग। नथिंग इज बिगर देन यू, बिकॉज यू गाइज आर द ह्यूमंस एंड वी ह्यूमंस हैव इन्वेंटेड इट। एंड बीइंग इंडियंस, हमारे DNA में है स्पेस टेक्नोलॉजी, बट द पॉइंट इज इट हैज नेवर बीन टोल्ड टू अस दैट वे, बट दैट्स ट्रूथ। बीइंग इंडियंस, आप कोई भी हिस्ट्री बुक जाके पढ़ लीजिए, एनी मॉडर्न हिस्ट्री बुक, 98% of the astronomical research of the ancient world was done by India, and 3/4 of the world history that has existed till today, आज के समय तक जितना समय है, 3/4 of that time भारत ही था एस्ट्रोनॉमी का सुपर पावर। तो आपके DNA में ये सब है, तो आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो दुनिया वालों से आप 10 कदम आगे चल पाएंगे। So after this, I would like to hand over to the students team, and because of some issues, sorry, Amit sir could not join. So I beg apology for that. So thank you so much.
So all over to you, Varshini. Please continue. Thank you, Yes. Anurag. It was amazing to you. And now, yes, now student team of NASA continue the session. यस सर, थैंक यू सर. सो हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम वर्षिनी है. मैं टीम नैपसेट की एक स्टूडेंट मेंबर हूँ. सो कुछ भी बोलने से पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहती हूँ हमारे टीम नैपसेट के बारे में. सो नैपसेट मीन्स फुल फॉर्म है नवोन्मेष प्रसाद स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमी टीम. सो ये एक इनिशिएटिव है जो नवोन्मेष प्रसाद फाउंडेशन से लिया गया था अंडर द ग्रेट विजनरी ऑफ द लीडर्स, जो उसके फाउंडर्स थे मिस्टर अनिल प्रधान सर एंड मिस वैशाली शर्मा मैम. सो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, हम जैसे बच्चे लोग के लिए ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक क्यूरियोसिटी हमारे अंदर डेवलप करता है कि स्पेस क्या होती है, स्पेस एजुकेशन क्या होता है, एक क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं. एंड हमारे अंदर वो स्किल्स डेवलप करवाता है जो हमें नेसेसरी है, हम लोग का वो स्किल्स जो हम लोग को फ्यूचर में, हम जिस करियर में, अगर स्पेस एजुकेशन के करियर में अगर तुम लोग में से कोई भी जाना चाहते हो तो वो स्किल्स डेवलप करवाते हैं जो तुम्हें बाद में फ्यूचर में या करियर में इम्पोर्टेंट होती है. और आप लोग को इनोवेशन क्या होता है पता चलता है इस ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू इट्स ट्रिपल ई टेक्निक. अब ट्रिपल ई टेक्निक क्या होती है? EEE स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंट, एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस. इसमें क्या होती है कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलती है. कोई भी चीज हो, आप लोग में से जानते होंगे कि कोई भी चीज अगर है आज तो उसका कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ होगा. वो एक्सपेरिमेंट होने के बाद ही वो आज अभी आया है हमारे सामने. कोई एक छोटा सा मोबाइल फोन से लेकर हम लोग का जो बुक से लेकर मोबाइल फोन तक कुछ भी चीज के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया होगा कि हाँ इसे इस तरह से बनाना चाहिए. तो कुछ भी तुम लोग न्यू इनोवेट करना चाहते हो तो तुम लोग को सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करना इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को जनरली स्कूल्स में करने को नहीं मिलती है. सो इधर इस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग सभी को एक्सपेरिमेंट करने का एक मौका मिलता है. फिर आप लोग को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाती है. इसका मतलब देखिए, आपको हर एक्सपेरिमेंट से एक सही रिजल्ट मिलेगा ये ऐसा पॉसिबल नहीं है. फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे गलत निकलेगा, सेकेंड अटेम्प्ट करोगे फिर भी नहीं हो पाएगा, ऐसे करते रहोगे. बट हर चीज के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है. तो सबसे पहले हम लोग को स्कूल में क्या होता है कि कोई भी अगर आप साइंस का कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, साइंस लैब जाके आपको बुक मिलती है ना, साइंस लैब की एक बुक मिलती है जिसमें लिखी रहती है कि हम लोग को ऐसा करना चाहिए, इतना इस तरफ से देखना चाहिए, तब हम लोग को ये रिजल्ट मिलती है. बट इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी नहीं होती है. आपको सबसे पहले बोल दिया जाएगा कि आपको ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करनी है, आप करो, आपको जैसी मर्जी है करनी है करो. फिर आपकी क्या गलती हो रही है, किस पॉइंट में आपका ठीक से नहीं हो रहा है, वो पॉइंट आउट किया जाएगा ताकि आप अंदर से सीख सको. ये होती है एनवायरनमेंट, कि आपको वो चीजें सिखाई जाती है जो हमें जनरली मिस्टेक होती है, जो बुक्स में हम लोग को जनरली दिया नहीं रहता है. उसके बाद एक्सपीरियंस, लास्ट में आपको समझ में आता है, एक्सपीरियंस होता है कि रियली हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसको आप अच्छे से समझते हो. कुछ भी आप अपने आप से करते हो ना, देखो आप किताब पढ़ते हो किसी चीज का, किसी स्टोरी का, लेकिन आप अगर उसकी वीडियो देखते हो, किसी मूवी देखते हो, तो आप एक चीज समझना कि आपकी मूवी आपके ब्रेन में और ज्यादा अच्छे से रजिस्टर होता है एज कंपेयर टू अगर आप बुक में पढ़ते हो. तो इससे क्या होता है कि आप जब खुद एक्सपेरिमेंट करके खुद आपकी गलतियों को समझ पाते हो तो आपको समझ में आती है कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है, तभी आप दूसरों को भी समझा पाते हो. सो नैपसेट इज अबाउट दिस थिंग. सो नैपसेट में करंटली हमारे 2 प्रोजेक्ट्स है. नासा HERC, मतलब जिस प्रोजेक्ट के हम लोग अभी पार्ट है, जो मैं, ऋषिकेश भैया और तानवी जो अभी आपके सामने प्रेजेंट है, ये है नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज. सो इसका मतलब होता है कि आपको एक ऐसा रोवर, एक ऐसा मशीन होती है जो बनाना पड़ता है, जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने के बाद मार्स या मून के ऊपर उसको जाके मून के हर जगह पर या मार्स के हर जगह पर उसको देखने के लिए उन्हें पॉसिबल करवाता है. वहां तो चल के जाना पॉसिबल नहीं है उतना दूर, तो दैट्स वाई एक मशीन हम लोग बिल्ड करते हैं, हम स्टूडेंट्स बिल्ड करते हैं, जो जिसकी कंपटीशन होती है नासा में. सो हम लोग उसके एक पार्ट है. दूसरा एक टीम है नैनोसैट, कैनसैट, जो है एक कैन साइज का एक सैटेलाइट बनाना होता है. जैसे कि अनुराग सर ने शायद बताया होगा कि जितना स्मॉलर होता जाएगा कि हम लोग का इनोवेशन उतना बढ़ता जाएगा, उतना बेटर होता जाएगा. सो एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें एक कैन साइज का सैटेलाइट बनाना होता है.
सो आप लोग को फर्दर कुछ बोलने से अच्छा मतलब मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। लाइक अगर मैं आप सब कोई को पूछूंगी कि आप क्या बनना चाहते हो, लाइक सब कोई के पास डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स होंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। सो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स होती है। बट आप लोग में से अगर मैं पूछूंगी कि कौन उसके लिए रियली वर्क कर रहा है इन द सेंस वो नहीं कि आप जॉब कर रहे होगे प्रॉपरली, बट उसके बारे में आप पढ़ाई कर रहे होगे, लाइक कुछ रीड कर रहे होगे कि हाँ मुझे ये पसंद है इसलिए हम इसको रीड कर रहे हैं, या हाँ मुझे ये पसंद है इसलिए हम इसके बारे में क्विज दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स अटेंड कर रहे हैं, मैं अपना नॉलेज बढ़ा रहा हूँ। सो ऐसे लाइक बहुत कम होते हैं स्टूडेंट्स, हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए जनरली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम लोग को छोटे तब से यही बोल के बड़ा किया जाता है, जैसे कि अनुराग सर ने कहा था कि हम लोग को सबसे पहले 10th तक पढ़ाई करनी है बेटा, उसके बाद आपको 11th 12th पढ़नी है, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर ही आपको जॉब मिलेगा, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो ये हमारे माइंड में हमेशा बैठा रहता है कि हम लोग को सबसे पहले अपना एजुकेशन खत्म करना है, उसके बाद ही हम लोग को जॉब करने को मिलता है। बट आज के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिकॉज आज हमारे पास इतने सारी अपॉर्चुनिटीज है, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो हम लोग को अभी से अपने करियर के लिए वर्क करने के लिए चांस देता है, हम सब स्टूडेंट्स के लिए, तुम सब लोग के लिए, जिनको लाइक क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कि छोटे तभी हम लोग का ब्रेन और ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग बड़े होते होते बुक्स पढ़ते हैं और हम लोग को लाइक वो थॉट लग जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग एक बैलून को उड़ते हुए देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि वाह यार कैसे उड़ रहा है ये, लेकिन बाद में हम लोग बुक्स पढ़ने लगते हैं तो हम लोग को टेक्निक समझ में आ जाता है, तो हम लोग के अंदर उतना लाइक वो नहीं रहता, हम लोग को कॉमन हो जाता है, हाँ चलो बैलून है उड़ रहा है, क्योंकि वो कॉमन हो जाता है। लेकिन छोटे तब हम लोग जब होते हैं तभी हमारे अंदर की जो ब्रेन होती है बहुत शार्पली काम करती है, बड़े होने के बाद उतना काम नहीं करता। सो दैट्स वाई ये नैपसेट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको छोटे तब से अपना ड्रीम अचीव करने के लिए आपको पेव करता है। तो अब ऐसी बात नहीं है कि आपको अपनी एकेडमिक्स पूरी छोड़ देनी है, बट आपको एकेडमिक्स के साथ साथ अपनी जिंदगी में जो लाइफ की जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए स्पेस एजुकेशन के फील्ड में बहुत हेल्प करता है। सो आप जैसे यंग क्यूरियस माइंड्स के लिए ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आप सभी के अंदर इनोवेशन बढ़ाना चाहता है। सो अभी एक क्वेश्चन आता है कि अरे ये तो बोल तो दे रहा है कि इनोवेशन आएगा तो स्पेस के अंदर काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन घुसना है, तो सोचेंगे कि ये कैसे हो जाएगा, थोड़ी हम लोग को अलग से पढ़ाई जा रही है या हम लोग को क्या कुछ कोचिंग वोचिंग लेना पड़ेगा ये सब चीज ज्वाइन करने के लिए। तो एक्चुअली मैं अपना स्टोरी बताती हूँ, एक्चुअली क्वाइट फनी होगा। तो तुम लोग में से कितने जन डोरेमोन देखते हो? कोई देखते हो या कोई सुने हो? देखते हो सब? Yes. तो हम जब छोटे थे हम भी डोरेमोन देखा करते थे, ठीक है। सो छोटे तब से ही उस उस कार्टून को देख के मेरे अंदर एक विजन था कि अरे ये लोग मतलब वो डोरेमोन नाम का एक आदमी वो गैजेट निकाल कहाँ से रहा है, वो लोग डोर के थ्रू एक प्लेस से दूसरा प्लेस जा कैसे रहे हैं, मतलब वो लोग टाइम कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग के अंदर छोटे तब से घूमता था कि ये हो क्या रहा है। फिर बड़े होते होते मेरा मतलब फिर मैं बुक्स पढ़ने लगी कि कुछ ऐसा रियली कुछ चीजें होती है क्या। फिर उसके बाद मेरा नॉलेज बढ़ा। फिर एक दिन मैंने डिसाइड कर दिया कि नहीं यार मैंने इतना कुछ पढ़ा है, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो हम एस्ट्रोनॉमर जो फिजिसिस्ट, एक्चुअली एस्ट्रोनॉमर एज वेल एज फिजिसिस्ट हम बनना चाहते हैं। फिजिसिस्ट मतलब वो जो स्पेस के रिलेटेड जो थ्योरीज देते हैं, मतलब एस्ट्रोनॉमी के अंदर मैं फिजिसिस्ट बनना चाहती थी। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये बनूंगी। तो ये एक छोटा सा डोरेमोन का एक कार्टून मुझे आज एक एस्ट्रोनॉमी के अंदर घुसने के लिए ये किया था या मोटिवेट किया था। तो इससे क्या समझ में आता है कि कोई बड़ी रीजन होने की जरूरत नहीं है आपको कुछ भी एक एम करने के लिए या कुछ एक टारगेट करने के लिए। एक छोटा सा आपका जिंदगी का फैंटेसी भी काफी है कि आप कुछ भी अचीव करो बिग। सो ये एक्चुअली हुआ था कि मेरे साथ कि हम इस फील्ड में कैसे आए। सो अपने 10th तक तो हम बस ऐसे ही पढ़ते थे, जैसे कि मैंने कहा कि वर्बली हम पढ़ते थे कि ये होती क्या है। एंड आफ्टर दैट मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने की चांस मिली थी, फिर मैं टीम में थी। सो टीम में फर्स्ट आने के बाद मैं बहुत बहुत सारी चीजें चल रही थी टीम में जो मुझे एकदम भी पता नहीं था, क्योंकि हम लोग सभी को 10th तक कुछ रिटन फॉर्म में ही पढ़ाई जाती थी, बट एक्चुअली टीम के अंदर आने के बाद कुछ बहुत सारे अलग चीजें चलती रहती है।
तो जो हमें स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है, किसी को भी पता नहीं चलता है। तो आप लोग को सर्च करना पड़ता है, उसके बारे में अलग से पढ़ना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीजें अलग से करनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली ये सब चीज करने करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है ये सब चीज करने के बाद। लेकिन एक चीज श्योर है कि आपको इससे बहुत बहुत नॉलेज मिलता है, जो रियली आपको अपनी जिंदगी में बाद में लाइक अचीव करने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो एक चीज की बोल सकती हूँ मैं कि कोविड तो मेरे लिए बहुत लकी था, बिकॉज अगर कोविड नहीं होता तो शायद हम भी वही प्रॉपर एजुकेशन फील्ड में चले गए होते, अपना 11th करके 12th करके अपना जॉब के लिए। बट कोविड आने की वजह से मुझे इस टीम के अंदर आने को लाइक एक चांस मिला। सो एक नैपसेट इन ऑल मैं यही कह सकती हूँ ओवरऑल कि एक ऐसा रेवोल्यूशन है जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को, हम जैसे सारे स्टूडेंट्स को एक स्पेस एजुकेशन के बारे में टीच किया जाता है कि स्पेस होता क्या है। जैसे कि अनुराग सर ने कहा था कि वो बहुत हाई फाई बात होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग कुछ भी छोटा मोटा चीज होते हैं तो बोलते हैं ना वो थोड़ी रॉकेट साइंस है, लेकिन एक दिन ऐसे भी आएगा जब हम सभी बच्चों को सीखने को मिलेगा ये होता क्या है, तो फिर हम लोग भी बोलेंगे अरे रॉकेट साइंस कौन सा बड़ा चीज होती है, वो भी तो छोटा ही चीज है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Varshini. I'm Rishikesh, the team captain of the NASA Human Exploration Rover Challenge team. Varshini ने तो NAPSAT के बारे में सब चीजें बता दिया about what it does and अभी currently क्या चल रहा है। I won't take much of time. थोड़ा सा technicals जाता हूँ। Actually team पे क्या चल रहा है actually अभी, what's the challenge about and what we are doing. So NASA Human Exploration Rover Challenge, it features an engineering challenge to engage students worldwide in the next phase of human space exploration. इधर हमें एक रोवर बनाना होता है, आपने देखा होगा एक गाड़ी जो दूसरे टेरेंस पे मून टेरेंस हो गया या फिर मार्स टेरेंस हो गया, उधर मतलब ट्रैवर्स करने के लिए, मतलब उधर जब लोग जाएंगे तो उधर कैसे घूमेंगे। सो फॉर रिसर्च पर्पसेस जब लोग जाएंगे उधर मून या फिर मार्स जाएंगे तो उधर के लिए उसको रोवर बोलते हैं। तो उधर वो रोवर बना रहे हैं हम। वो रोवर अभी इन 2024 द आर्टेमिस मिशन नासा का, उधर दे आर प्लानिंग टू सेंड द फर्स्ट वुमन एंड द नेक्स्ट मैन टू मून so that they can traverse on moon. So for that in 2024 NASA will be launching a moon rover. So for that हम लोग को भी एक चैलेंज दिया गया है, दैट नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज। इसका पहले वाला नाम था ग्रेट मून बगी रेस। पहले इसको मून पे टारगेट किया जाता था, फिर 2024 पे रिसर्च के लिए भेजा जाएगा मतलब रोवर, एंड इन 2028 मून पे रहने के लिए सस्टेनेबिलिटी टेस्ट 2028 तक सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा। तो आफ्टर दैट, आफ्टर 2028 दे आर प्लानिंग टू सेंड इट टू मार्स 2। सो it features इसको एक I'm just showing the rover हमारा डिजाइन क्या था। We'll just give a brief idea. This is the rover that we are designing of. Just a second. It's a rover cycle two wheels का होता है ये। This rover will be of 4 wheels and इसको 5 foot मतलब length, breadth and height में 5 foot के अंदर। Are you sharing the screen? No, I have just turned it off. Okay. Yeah. So currently is and this presenting it again, I'm facing some internet issues. Yes, Rishikesh, are you facing some network issue? Yeah. Okay, no issue, Rishikesh, but no problem. You can take time, no issues. Anyone else is there? Just a minute, sir. Is the screen visible? Yeah, you are able to connect now?
Yeah. Yes, great talk by all of you. I really appreciate that. Amazing. And the students are also liking that I can see in the message box. It's really great. Just play them some videos and all. They will be more happy to see that. See this, kids. This is the NASA rover. Okay, just check. This is the rover Play like that. that we are gonna take there. This is our design. It's now selected with the top 100 teams all over the world. Like other 99 international teams have been selected, and NAPSAT, like this is the first Indian team that's been selected to represent at NASA Human Exploration Rover Challenge. It's been conducted since the last 40 years, but no other Indian high school team had been selected. Like college students, they used to go there because this features a lot of engineering stuff. Like these 3D stuff is all done by our students only. Like he's a grade 11 boy. He has designed and stimulated in the Mars terrains. So like it's a 5 foot. This whole rover will be in the stuff of 5 foot, 5 foot, 5 foot, and one woman and one man will be sitting here. They will be traveling this rover with the in Marshall Space Center at NASA, Alabama. So it has to be like its challenges. Some of the challenges were like this rover has to be folded into two parts. Like as you can see, wait a second. This rover gets folded out. So one of the major challenges was like the vehicle has to be folded into two parts, and it has to be folded into three parts. Like first fold will be this part, and the second fold will be within the wheels, and the third fold will be in the rear wheels. So the major challenge was that, and the one of the other challenges was like it has to be traversed in many other different terrains like marshy terrain, boulders, then many rocky particles. It has to be traversed there, and yeah. So like after that, the team that completes the whole race, like it will be a complete race type event. The team that completes the whole race with all the safety guidelines and with within the fastest time and completes the 14 obstacles, that team wins, and that model, that rovers will be selected out, and that will be kept for observation, so that in 2024 when there will be NASA will be sending the rover, they will be selecting the best designs of the rovers that have been currently won, and they will be sending it to moon. So on technical stuff I take that leave, then Tanvi will continue with the further proceedings. Thank you. वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन ऋषिकेश जी. तन्वी जी आप म्यूट कीजिए और अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए. Hello guys. Very good. Hello guys. Again, thank you for IDYM for such an amazing opportunity. It's very nice to meet you all. So first I'll start with the journey of NAPSAT, of our student, like NAPSAT NASA HERC core team of our student team. So it all started around October. So we got selected by we had to give like around some interviews, and we were asked some questions. Those are like really casual interviews. Our sirs are like really friendly with us. So we gave some interviews, and then we got selected for the team. So what we had to do next was we had to submit a proposal about our rover to NASA, so that they can judge it and select us accordingly. So on November 6th, the happy news arrived that we have got selected, and we have made history. We are now the first Indian under 19 interdisciplinary team to represent India at the NASA Human Exploration Rover Challenge. So first of all, it was really amazing. We were all so excited, but then the problems started to appear. So as we were the first high school team, and like first when we heard that we are the first team, we had no one to look up to. We had college teams, but no one in our own category to look up to.
So it was kind of complicated. Then we started thinking like they couldn't do it, then how can we do it? We got really demotivated. At that time our educators helped us a lot, and finally we learned uh, a very valuable lesson, that it is not as hard as it seems. Because I'll assure you that we were ninth to from ninth grade to 12th grade and some ITI students, so we didn't really know anything about rovers. All we had heard about rovers is opportunity, spirit, they existed. That's all we knew. So we didn't know about rovers and how to make those and how they work. So we had to make a full human like sized rover that has to be driven by two of our team members. So it was great pressure, and we had zero background knowledge. All we knew was some basic astronomy stuff, and all we had with us was our interest and our dedication. So Asa told us that it was enough, and then we started to research about these things ourselves. So we had to go to different sites to learn about these things and how rovers work and how to make them, what are the materials to be used, and slowly now our rover is under fabrication process. So things are going great for now. So now I would like to tell you the stories of three of our team members who are actually ITI students. So they're skill development students and training students. So after 10th, they didn't have the opportunity of going for further studies. What they did was they went for training. They went for welding and training. So first, I would like to tell the story of one of our girl team members, Reena Baghav. So there are a lot of girls I can see over here in this meeting. A lot of girls are there. I myself am a girl. So we know that some people do think that we are delicate and we cannot do manual work like welding and all. But Reena Di, she is actually a great inspiration. She had come to Bhubaneswar to actually visit her uncle's house. You can see Rishi Bhaiya just presented. Reena Di is over there welding the chassis of our rover. So she had actually visited Bhubaneswar for coming to her uncle's house and just like visiting as a casual vacation and all. And then the pandemic started. So she was stuck now. In Bhubaneswar, she was stuck and they did not have food. I'm pretty sure that almost all of us over here go to privileged schools, have 2 square meals a day, but she did not have anything to eat at their home. So they had to earn by some way. So what Reena they did was that along with her sister, she went out to look for some jobs. And she was at first trying to pursue a job of a maid. So she was looking for a maid type of job, and she was going around to houses after houses looking for jobs, but nobody would hire her because obviously it's the pandemic time, and people from outside they were really concerned about their own health, so they did not want anyone else to come to their house. So finally what happened was that one of the local welding shops here in Bhubaneswar actually hired her. The owner is actually a really good person. He saw these two young girls looking for jobs, and then he was like, you can come. And they did not know even a little bit about welding. In like the 1 or 2 months or so, they had to learn about welding from the start, and they started learning about welding, and then they started doing welding. So they got so good at it that ITI reached out to them from their side, and they told them that you have to enroll over here so that you can get a brighter future and not work in a welding shop forever. So they came to ITI, and their journey didn't stop there. So Reena Di, when she was in ITI, her performance led her to be ITI like proposed to NAPSAT that you should take this girl into your team. She will really help. And then by seeing her skills, of course, we she was in our team now, and now she's going to NASA. So a girl who could not like get even like 2 square meals a day, now she's the welder of the NAPSAT team who is going to NASA.
Then there's Kailash Bhai, who had to work jobs to pay his tuition at ITI or SDI. He had to work jobs like caretaker jobs or an electrician job and everything like that. So he had to go out there and work just to pay for his fees. And then he did that. And now also he is also a welder of our team. Then similarly, we have Donda Bhai, who at the tender age of 13 or 14, I think, he went out to Bombay for another job like that. So he used to earn only 12,000 a month for some welding job, and then he came back and to SDI so that he could learn a little bit more and earn around 15,000 or so. But his expertise in welding led him to be selected by NAPSAT, and now also he's a part of our team who's going to go to NASA this April 2021. So here we see that children who are not as privileged as us, they do not even get 2 square meals a day. They go and they do such great things. So why can't we? I myself am a 9th grade student. So all of we think that space technology is a vast concept. It is so complex, and we need high level of mathematics or science or physics that we can't even get in this like young age. We have to go to 12th, or after that, after post graduation, then we will think of going into space technology or something like that. But actually, space technology is not as complicated as we think. It is in our life. Everywhere we see space technology is there. For example, now only we are experiencing space technology through this online webinar. We are experiencing space technology when we are going out somewhere and we are getting lost and we are using Google Maps. Everywhere we see space technology is there. Space is a very vast concept. It has a place for everyone. For example, let's say that you're interested in biology. Then you can dedicate yourself to learning about life on Mars. Maybe there is a hint of water in Mars right now. Then maybe life can sustain over there. You can work on that. Maybe Anurag sir just presented on NanoSat and CanSat. Maybe you were interested in that. Then you can go for satellites. Maybe you are interested in photography. Also for that, we have a brand, spectrography in space. Maybe you're interested in physics. Then you can go for astrophysics. Space has a place for everyone. And we should not think that it is too complex for us to go, or it is not like. All we need is interest and dedication. Once we get that, we can achieve anything in life. Really anything. Because you don't need the knowledge. Like, we don't go into somewhere or into a profession by knowing everything. What we do is we learn through experience. A doctor, like performing his first surgery, he doesn't know everything. But through experience, he only knows the basic concept. That's it. But through experience, he gets more and more experienced, and then only he's a good surgeon. So like that, we need to learn through experience and not just by reading books and reading from somewhere. It just does not give us the amount of knowledge. It does teach us something, the basic concept, but we don't remember it for a lifetime. Stuff that we have read in 3rd grade, maybe 6th graders don't remember it now. But if they had experienced that thing in 3rd grade, then maybe they will remember it for a lifetime. So for that, I would say that if you want to do anything, if it is space technology, or if you want to be a doctor and help astronauts when they return from their voyage in space, or maybe you want to be an astronaut yourself, all you need is interest and dedication. And then you start pursuing something in that field, and surely you will learn something, and definitely you will achieve something in that career, and you will do great. So that's it from my side. Thank you. Just adding one more point, like Tanvi did a great explain about the 3 inspiration stories. Currently, in the NASA Human Exploration Rover Challenge, there's another part of it. Like, one side is the rover challenge and the other side is the STEM engagement.
about this workshop. It's a part of the STEM engagement too. So like for that, we are having some STEM engagement in the schools and all. So like you can visit our sites, like just sharing the sites, like you can check the site. If you're interested for the NASA Human Exploration Rover Challenge STEM engagement part, then you can register and we can continue with the journey. We have already engaged 15,000 plus students. We are continuing to do it, and we are planning for a Guinness and Limca Book of Records in the STEM engagement part. So if any of you are interested in being a part of it, then you may surely join it. I'm just sharing the screen and showing it bit. Just hear about, I will get the details about the campus ambassador programs. Just sharing it. And here you will get all the details, like this is the okay, sorry, my bad. You'll get the details about the team and all. That's it from my side. Over to you, Anurag sir. Thank you, sir. Yes, Anurag ji. Yes, thank you everyone. It was a great, amazing speech by all of you. Rishikesh ji. Okay. So I think Anurag ji, are you there? Yes, yes, sir. Yes, sir. यस यस, तो अनुराग जी आप हैं यहाँ पर, तो या आपके परमिशन से मैं सुमिता ठाकुर मैम को कॉल करना चाहूंगा, जो कि स्कूल से के साइड से जुड़ी हुई है, प्रिंसिपल है वहाँ की. तो सुमिता ठाकुर मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल योर वर्ड्स फॉर नासा टीम एंड अदर पीपल. सुमिता मैम, कैन यू हियर मी? डॉक्टर सुमिता ठाकुर मैम, Dr. Sumita Thakur ma'am. Hello sir, am I audible? Yes. Yes. Actually, due to some connectivity issues, I was not, I think, audible. So, hello, dear all the members from your foundation, students, and the speakers, person from the NASA team. I would like to extend my, big thank you to each and every one of you for sharing your valuable knowledge. It was really an inspiring story. Mr. Anurag Jubinji, Varshini Kanuri, Tanvi Malik, Mr. Rishikesh ji, you people are really wonderful. And I think through this workshop, our students get the motivation to be the part of satellite technology. We can try, and we together can try to make them interesting in this new arena, new field of the 21st century. So it is really wonderful to know your journey, your efforts, your hard work behind this NASA, right? Behind this journey towards NASA. Your knowledge with us and motivating our students. Thank you, your foundation. Thank you, Mr. Ravi Shankar ji. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for your kind Thank you so much, ma'am. Yes, I think some of you are there. They want to speak. I think they are there or not. Little bit. So yes, Anurag ji, you want to share something more today, or we can end the session? Yeah, that's all from our side. That's all. Yes, तो बच्चों देखो, ये शुरुआत है और ये शुरुआत की जर्नी है, और यहाँ से हम बहुत आगे जाएंगे साथ में मिल करके. मैं आपकी मैम को बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा कि मैम को कभी भी मैसेज करो तो उसी समय इंस्टेंटली रिप्लाई करती हैं. तो आज जो ये वर्कशॉप हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा हीरो कहा जाए तो मैम है. उन्होंने बहुत मेहनत किया इसके पीछे, और उन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमें नासा की टीम चाहिए. उनका एक विश था, और हम नासा की टीम को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. उनका बहुत बिजी शेड्यूल है और कल संडे के दिन उन्हें बहुत काम होता है, फिर भी इन छोटे बच्चों ने इतना टाइम निकाला, ये बहुत ग्रेट बात है. और बच्चों देखो, ये बच्चे जो है ना, ये फ्यूचर के, जो आप सुने होंगे किताबों में पढ़ते होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऐसे ही बच्चे बन जाते हैं. जो आप सुनते हो किताबों में, ऐसे ही बच्चे एक दिन वो जगह पर पहुंच जाएंगे.
और आपको लगेगा कि मैं भी उनकी स्पीच सुना था। तो मैं चाहूंगा कि आप में से हर बच्चा इनकी तरह बनने की कोशिश करो, यही हमारा मिशन है, इसीलिए हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। सो मैम, सेशन बंद करने का, सुमिता ठाकुर मैम, कैन वी क्लोज द सेशन? Yes. I Thank once you, again everyone. want to say thank you, IDYM Foundation. Thank you so much. We'll be in touch, and definitely we can have new space scientists from our school. And in the coming days, we'll be in collaboration for some other ventures also. Yes, Thank you ma'am, so yes. much. हम लोग साथ Thank you मिलके so बहुत कुछ करेंगे। बच्चों, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, लास्ट में भारत माता की जयकार दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग भारत माता के लिए काम करें। सभी लोग अपने माइक अनम्यूट करो एक ही बार में और बोलो एक बार में भारत माता की जय। सभी लोग माइक अनम्यूट कीजिए, सभी बच्चे। भारत माता की जय। भारत माँ की जय। यस बच्चों, तो आप लोग अब मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो। जय हिंद जय भारत बोलते हुए सभी लोग मीटिंग लेफ्ट हो जाओ बच्चों। जय हिंद जय भारत। 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 जय हिंद जय